Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Alim Pamar, lecturer in chemistry, Government of Sindh. So today my topic is Planck's quantum theory. So Planck's quantum theory that is related with the light. तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें लाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। लाइट जो है बेसिकली जिसको हम रोशनी कहते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक इकसाम है। और बिफोर दिस थ्योरी, बिफोर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट के जो मतलब डेफिनेशन थी या लाइट को जो समझा जाता था दैट इज द वेव ओनली। ये लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होती है and it travel from one form to another form through waves. It travel from one place to another place in the form of wave. So if it is a wave, then it is absorbed or it is emitted by the matter continuously. So when the world is established after the theory of Planck's quantum theory, so in 1900 Max Planck gave theory about light is known as Planck's quantum theory. So light is not emitted or absorbed continuously. रोशनी जो है वो तसलसल के साथ ना जज़ब होती है ना ही खारिज होती है, बट लाइट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो जज़ब होगी या खारिज होगी किसी भी मैटर में तो पैकेट की सूरत में। अब हम उस पैकेट को प्लांक्स क्वांटम ने नाम दिया, प्लांक ने नाम दिया क्वांटा फॉर प्लूरल, क्वांटम फॉर सिंगुलर। So this quantum, this is the packet of energy or bundle of energy that is absorbed by matter. So this is known as quantum. So light is absorbed by the matter in the not in a continuous form, but it is in the discontinuous form. So if a matter absorb energy, so that might absorb energy is light, that might absorb the quantum of light, that is discontinuous absorption. तो इससे हमें पता चलता है कि रोशनी जो एब्जॉर्ब होती है मैटर में that is not continuous. So Planck's quantum theory that is very अब इसकी जो एनर्जी होती है फोटॉन की या हम क्वांटा की कहें, that is equal to E is equal to the equation of this Planck's quantum theory is E is equal to h into nu. E is the energy of radiation, h is the Planck's constant, nu is the frequency. उसके बाद हमें पता है कि इससे मतलब ये साबित होता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ वी इंक्रीज द एनर्जी then the frequency will be also increased. If we decrease the frequency then the energy is also decreased. And inversely proportional to the wavelength, because frequency is inversely proportional to the wavelength of any radiation. Therefore energy is equal to h upon lambda. Now what is h? H is a Planck's constant. h क्या है? ये कांस्टेंट है किसके दरमियान? इज द रेशियो ऑफ एनर्जी पर with frequency. So that is a ratio of two things, one is energy and frequency, that is always remains constant. ये h जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 6.625 into 10 raised power -34 जूल into सेकंड है। दिस इज अ Planck's कांस्टेंट है। तो उसके अलावा
Therefore, the energy of the quanta is inversely proportional to the wavelength. अब wavelength फोटॉन की या क्वांटा की बड़ी होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन स्पीड वही रहेगी, स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। और इसमें मतलब लाइट के बारे में है, और लाइट जो है वो एनर्जी है। तो मैं क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है या खारिज होती है किसी भी मैटर में, वो कंटीन्यूअस नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। दिस पैकेट ऑफ एनर्जी वर कॉल्ड एज क्वांटा, उसको हमने क्वांटा कहा। और आगे चल के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको कहा कि फोटॉन। तो उसकी एनर्जी जो है A is equal to h nu के बराबर है। A is the energy of radiation, h is the Planck's constant, nu is the frequency of radiation। frequency को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और उसके अलावा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द wavelength, therefore E is equal to h upon lambda, h is Planck's constant है 6.625 into 10 to the minus 34 joule into second, और ये Planck's constant, that's it। और अभी हम उसके बारे में दूसरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आगे चल के। और उसके अलावा हम डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम होते हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।